and have infinitely many solution if theta belongs to pi to 7 pi by 6. In second option, infinitely many solution in pi by 2 to 2 pi by 3 and unique solution in pi to 7 pi by 6. Third solution have infinitely many solution if either of this interval and has a unique solution if either of the interval. So these are four options. This question asked in JEE main 12th April 2019 in second shift. So you remember first of all bracket x, that you know the greatest integer smaller than x. You know bracket 3.5 value, what we write 3. Bracket 4.7 we write 4. Bracket 0.5 value 0. Bracket minus zero point 0.5 we write minus 1. In this way we know the value of bracket. Now here in your equation we have bracket sine theta, bracket cos theta and bracket cot theta. So we first think in given two intervals. First of all we choose interval pi by 2 to 2 pi by 3. In this interval, what about bracket sine theta? What about bracket minus cos theta? After then we substituting value there. And similarly we find bracket cot theta value and we substitute in equation 2. So you get two equation. These two equation when you solve, then you have to watch whether you get finite, infinitely many solution or unique solution. And then after we go for the second interval from pi to 7 pi by 6. Clear? Understand Yes, this? sir. Huh. So first of all, we discuss for interval pi by 2 to 2 pi by 3. Now see page number 38. આગળ જવા દે ભાઈ. હા 38 પેજ આવશે, સીધું કરી દે એને પણ. There we have case 1. Consider, yes, interval look. Consider theta belongs pi by 2 to 2 pi by 3. Look at figure. You know pi by 2 at B point on y-axis and 2 pi by 3, that is 120 degree. This is in second quadrant. So therefore pi by 2 to 2 pi by 3 lying in second quadrant. Clear? Clear this pi by 2 to 2 pi Yes, by sir. 3 in second quadrant. हाँ Now सर. in second quadrant, we know that sine and cos both are decreasing function. In first quadrant, sine increasing, cos decreasing. In second function, sine, cos both are decreasing. In third quadrant, sine what? Sine function decreasing. Cos also, no, cos increasing. And in fourth quadrant, both sine and cos increasing. But here at present, we have worked with second quadrant. So in second quadrant, remember sine, cos both are decreasing function. And also, you know, cot function always decreasing function in every quadrant. So here all three functions, sine, cos and cot, they all are decreasing. Now, whenever decreasing, then you know inequality reverse. See it here, pi by 2 less than theta less than 2 pi by 3 implies when I apply sine function. Remember when I apply sine function. So we know sine pi by 2 greater sine theta greater sine 2 pi by 3 means inequality change when function is decreasing and here sine decreasing. So we get what? Sine pi by 2 greater sine theta greater sine 2 pi by 3. And that is as good as what? Sine 2 pi by 3 less than sine theta less than sine pi by 2. And value of sine 2 pi by 3, because it is in second quadrant, its value is positive. Pi minus pi by 3, 2 pi by 3 means it is as good as sine pi by 3. So therefore root 3 by 2. Less than sine theta and less than sine pi by 2 means 1. Now nearly value of root 3 by 2 if you calculate, then you get 0.8665.
It means 0.8665 less than sine theta less than 1. It means when I discuss bracket value of sine theta, then it must be 0, because point something value for sine theta, and that bracket value always 0. So bracket sine theta 0 we obtain in this interval. Look at for cosine what happened. So pi by 2, again we start pi by 2 less than theta less than 2 pi by 3, both side apply, throughout apply cos. You know cos also decreasing, therefore cos pi by 2 greater cos theta greater cos 2 pi by 3. It means that cos 2 pi by 3 less than cos theta less than cos pi by 2. Clear? Now cos 2 pi by 3 Yes, value. sir. Yes, sir. You remember 2 pi by 3 again we say in second quadrant, and there is negative. So cos 2 pi by 3 is cos of pi minus pi by 3. That is minus cos pi by 3. So it is minus half less than cos theta, and cos pi by 2 you know 0. Therefore less than 0. So cos theta be lying between minus 0.5 to 0. But we are interested for minus cos theta. So throughout multiply by minus 1. You know 0.5 means half. So minus minus plus half. Greater minus cos theta greater 0. And when you write in odd, say a similar order, then 0 less than minus cos theta less than half. It means your minus cos theta lying between 0 and 0.5. So bracket minus cos theta value obviously 0. So what happening here? Bracket sine theta and bracket minus cos theta is 0. Both are 0. Let us see what happen in cot. Also cot function, you know, decreasing function in every quadrant. And here pi by 2 less than theta less than 2 pi by 3. There if you take cotangent function on throughout, obviously we have cot pi by 2 greater cot theta greater cot 2 pi by 2 because of cot decreasing. And when you write in order, then first of all write cot 2 pi by 3, then less than cot theta less than cot pi by 2. You know cot 2 pi by 3 value is cot of pi minus pi by 3. In second quadrant cot also negative, it is as good as minus cot pi by 3. And cot pi by 3 value what? 1 by root 3. So that minus 1 by root 3 less than cot theta less than 0. You know, it is smaller than 0 and greater than minus 1 by root 3. So negative point something value, and its bracket value obviously minus 1. So putting this bracket sine theta 0, bracket minus cos theta 0, and this bracket cot theta equal to minus 1 in your given equation. If you remember, the given equation is what? Bracket sine theta x plus bracket minus cos theta y equal to 0. So where I write 0, 0, the equation collapse. 0x plus 0y equal to 0 means both sides 0. No x and y term. And in second equation you are given bracket cot theta x plus y equal to 0 in statement of question. So bracket cot theta put minus 1. So here now we read minus x plus y equal to 0. In other words, from both the equation we only have y equal to x. Correct? Y equal to x. And that means Yes, it satisfies many solutions. You know, x equal to y, so you can take 1 1, you can take 2 2, you can take 3 3, you can take minus 1, and so on. You can take half half. घंटे को होता है और So 1 घंटे में ले रहे हो आप, ठीक है? हाँ तो ऐसा हाँ नहीं करने का, वो भी बच्चे हैं आपके। तो पढ़ाया ही है मैंने, 10:30 को छोड़ा है मैंने। मैं देखा था मैंने कितने बजे कितना छोड़ा। छोड़ा? अच्छा, now this 10:22 this 22 system have 55 देख लेना। प्रियंका मैम। चलो बेटा मैम स्टार्ट बंद करें। कर लो ना माइक। आगे दोनों। प्रियंका। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैम एनसीईआरटी सॉल्व कर ली थी हम लोगों ने, और लास्ट में 2 क्वेश्चन बचे हुए थे और आपको ऐसा बोला था कि आप वो 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। हुआ है कि नहीं?
This system have infinitely many solutions. This system obviously have infinitely many solutions. It means that what we are given equations have infinitely many solution in open interval pi by 2 to 2 pi by 3. Now we go to check what solution in interval pi to 7 pi by 6, second interval. Let's consider in second case, theta belongs pi to 7 pi by 6. You look first figure. Where is your pi to 7 pi by 6? Third quadrant. You know 7 pi by 6 means pi plus pi by 6. So obviously it is in third quadrant. Huh? It is 182, 210 degree. 7 into 30. Pi by 6 means 30. So obviously it is in third quadrant. And you know in third quadrant, sine function always decreasing, but cos is increasing. Cot always decreasing in every quadrant. No problem for cot. It is always increasing. Tan function, you know, cot always decreasing and tan always increasing. Now here discussion for sine and cos. Sine decreasing in third quadrant and cos increasing. So according as we proceed. Okay. So pi less than theta less than 7 pi by 6. So we know sine is decreasing. Therefore, when apply sine function throughout, then inequality change. Sine pi greater sine theta greater sine 7 pi by 6. Or it is as good as to write sine 7 pi by 6 less than sine theta less than sine pi. Now what about sine 7 pi by 6? You know sine pi plus pi by 6. It is negative sine pi by 6 because of sine is in third quadrant. In third quadrant, only tangent function positive, sine cos both negative. So obviously sine 7 pi by 6 value is minus sine pi by 6, means minus half, less than sine theta, and sine pi always we know 0. So where is your sine theta? From minus 0.5 to 0, and its bracket value if you count then it is minus 1. So we obtain bracket sine theta value in this interval is minus 1. Let's proceed for cosine. Pi less than theta less than 7 pi by 6 and cos increasing. Remember cos increasing in third quadrant. So no inequality disturb when you apply throughout cos. So cos pi less than cos theta less than cos 7 pi by 6. Cos pi we know minus 1 value less than cos theta, and cos 7 pi by 6 again cos pi plus pi by 6 minus cos pi by 6, and cos pi by 6 root 3 by 2, therefore minus root 3 by 2. So now I interest for minus cos theta. Remember in our equation bracket minus cos theta, so multiply by minus 1. So when you multiply by negative sign, then also inequality change. So when you multiply by minus 1, minus minus plus 1, greater minus cos theta greater root 3 by 2. It is same as to write root 3 by 2 less than minus cos theta less than 1. It means what? Root 3 by 2 is 0.8 something, and that value 1. It means your minus cos theta has value point something, and that why bracket minus cos theta 0. Clear? Both of value clear. Bracket sin theta minus 1, bracket Yes, minus sir. cos theta 0. Okay. Now let's calculate cot theta. Page change करी दे भाई. Right. पेज नंबर बदल. हाँ, इसको सीधा करके लिख दे. 39. हाँ, ये रहा. देखो cot function decreasing everywhere in every quadrant. So pi less than theta less than 7 pi by 6, apply cot. So obviously cot pi greater cot theta greater cot 7 pi by 6 means cot 7 pi by 6 less than cot theta less than cot pi. Cot 7 pi by 6 is cot of pi plus pi by 6 plus cot pi by 6. You know, tangent cot both are positive in third quadrant.
So it is positive root 3 less than cot theta. And what is cot pi? Cot pi means cos pi upon sin pi. Cos pi you know minus 1, but denominator sin pi 0. So minus 1 by 0 we assume as what? Infinite value. So it means root 3 less than cot theta less than infinity. So what we put value of bracket cot theta? So it is 1 if you write root 3 to 2. You know root 3 1.7321. And if you stop at 2, it means if you take cot theta value between 1.7322 2, obviously its bracket value 1. When you start from 2 and smaller than 3, then its value 2. You know it is bracket value function and so on. If you write 3 less equal to cot theta less than 4, then it is 3. In general, we say bracket cot theta is all integers positive 1, 2, 3, dot, dot, dot. It is infinite set. So let it is equal to n set of integers, set of course, positive integers. Let's see what about in our equation 1 and 2 by taking all these three value. You know, we obtain bracket sine theta value here minus 1 and bracket minus cos theta 0. And now bracket cot theta is positive integer 1, 2, 3, dot, dot, dot. So what happening in equation? जरा आगर ले भाई. Equation 1 and 2 becomes what? Look at now equation. Your first equation in your statement is bracket sine theta x plus bracket minus cos theta y equal to 0. There we put bracket sine theta value minus 1, what we obtain, and bracket cos minus cos theta 0. So it is minus 1 into x plus 0 into y barabar 0. Agreed? Now in second equation, we have bracket cot theta x plus y equal to 0. But bracket cot theta is any positive integer, just we obtain 1, 2, 3, dot, dot, dot. So let us assume it is n. So we say n into x plus y equal to 0. Now in first equation, when you solve first equation, you get x equal to 0, very obvious. And that x, if you put 0, whatever n you select 1, 2, 3, 4, it is vanished. Only y and y equal to 0. So means both equation by solving we get x 0 and y 0. It means unique solution. The system has unique solution 0, 0 in this interval. So now if you observe in your 4 option, then B option is correct. In B option, we are given that the given equation have infinitely many solution if theta belongs to pi by 2 to 2 pi by 3 and has unique solution if theta belongs to pi 7 pi by 6. This is option B given. समझ में आ रहा है सबको? कुछ तो बोलिए. समझ में आया? हाँ हाँ. तो मैं क्या कहने जा रहा हूं कि वो पिछले टाइम ये सम बाकी रखा था हमने, बहुत लेंदी था, इसीलिए हमने क्रॉस करके 44 लास्ट सम लिया था लास्ट टाइम. 44 नंबर ऑलरेडी कंप्लीटेड. सो वी स्टार्ट 45 नाउ. 45th पेज नंबर 40 पे है. बस बस आ गया आ गया. अब बराबर पढ़ो उसको, जरा ठीक ठाक कर ले. बराबर 45 नंबर दिख रहा है. If the system of linear equations, you are given three equations, read carefully, where A, B, C belongs to R are non-zero and distinct, has a non-zero solution, then what about this A, B, C, D? Which one is true? This problem asked in JEE Main 7th January 2020 in first semester, means in first shift. Okay, 7th January 2020. How we solve this? So you know, right hand side generally we call D1, D2, D3. They are already given 0. And we are given that this system has what? Non-zero solution.
obviously d1, d2, d3 when 0 and we are given non-zero solution, therefore delta must be 0. So you start taking delta बराबर 0. જોઈ લો જરાક આગળ વધો ઉપર જવા દે. હા, look at determinant of coefficient of your equation for xyz. So we see 2 2a 2 3bb and 2 4cc equal to 0. Now by simplifying, look carefully, 2 into bracket 3bc minus 4bc, therefore minus 1bc. Then minus 2a into check 2c minus 2b. What we see in last number, a into bracket 2 4s are 8c minus 2 3s are 6b equal to 0. Now when you open it, minus 2bc, then say minus 4ac, then you have last term c plus in last bracket c plus 8ac. So therefore that 8ac and in second term minus 4ac cut, it means plus 4ac. Then look at plus 4ab and in last one minus 6ab. That means minus 2ab equal to 0. Now throughout you cancel 2 and also change the side. I get BC plus AB or AB plus BC equal to 2AC. Check yourself. AB plus BC equal to 2AC. And now dividing this relation throughout by ABC. ABC. So AB divide by ABC means 1 upon C. Then BC divide by ABC, that is 1 by A. And right hand side when you divide by ABC, then 2 upon B. So you have 1 by A plus 1 by C equal to 2 upon B. Or rather you say 1 by A plus 1 by B whole upon 2 is 1 by B. It indicates that 1 upon A, then 1 upon B and 1 upon C are in AP. जरा ऊपर खींचने भाई. हाँ, हम समझ पड़वी जो कि सम आवी गयो पूरू थवा આવ્યું. બસ 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 stop it. 1 by A, look at 1 by A plus 1 by C left hand side and it is twice upon B. So that to take in denominator of left side. So can you say or not 1 by A plus 1 by C by 2 equal to 1 by B? It indicates that 1 by A, 1 by B and 1 by C are in AP according to definition of arithmetic progression. Correct option is C. In your given 4 options, C is in favor. Now look at 46 number. Yes, it is on page number 41. Now read carefully. The statement is what? Let capital A bracket Aij, matrix given, matrix Aij, and bracket B equal to bracket Bij, that is matrix Bij. Both are of 3 by 3 real matrices, means inside number are real. So these are two 3 by 3 real matrices such that condition read Bij equal to 3 to the power I plus j minus 2 and into Aji, not Ij, Aji, reverse order, where Ij must be 1, 2, 3. If the determinant of B matrix is 81, then what the determinant of A? This is the question. बहुत सिंपल सम है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो और उसके मुताबिक जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे वर्क करते जाओ, तो कोई तकलीफ आने वाली नहीं है. देखो JEE मेन 7 जनवरी 2020 का सेकंड शिफ्ट का सम है. Let us start. How we start? We choose both matrices of 3 by 3. As usual, A you know, A11, A12, A13, A21, A22, A23, and A31, A32, A33. Similarly, I choose for B. B11, B12, B13. Then B21, B22, B23. And what is last? B31, B32, and B33. Now in these two matrices, in your statement, you are given the relation
That is, in this element of these two matrices, what relation is given? So that I have mentioned, where Bij equal to, read carefully, 3 to the power I plus j minus 2 into Aj, I 1, 2, 3. Clear? મ્યુટ કરીને નહીં બેસો, થોડી થોડી વાર ઓપન કરીને જુઓ. હેલો. સર હા સર હા, હવે જે વાત છે તે બહુ અગત્યની છે. Bij બરાબર જે રિલેશન છે, આપણે B11 શોધવું હોય તો I ને J11 મૂકવા પડશે. સમજ પડે છે? પછી હા મારે સર B12 જોઈતો હોય તો I1 ને J2 લખીને એમ બધું શોધવું પડશે. તો જરા ઉપર જવા દે ભાઈ, પેલા ને કે બેસી નહીં રે. હા, જો મેં કેલ્ક્યુલેટ કર્યું તેના પર નજર કરો. B11, so I put wherever I and J11, so 3 to the power 1 plus 1 2, 2 minus 2 0, એટલે 3 raised to 0 1, and AJI, that is A11, means B11 and A11 same. એટલે B11 ની જગ્યાએ આપણે A11 લખી શકીએ. એવું સમજમાં આવ્યું? યસ સર હવે જુઓ B12. તો how we write B12? I value 1 and J value 2. તો power of 3, 1 plus 2 minus 2. તો 2 2 તો કટ થઈ જશે. 3 raised to 1 આવશે, means 3. Into, remember I and J value 1 2. Now to write JI, AJI means 21, A21. So what is B12 value? 3 times A21. Clear? યસ સર I ની જગ્યાએ 1 મૂક્યા આપણે, J ની જગ્યાએ 2 મૂકીને ગણતરી જે આવતી હોય તે લખવાની. આપણે ગજવામાંથી તો કઈ લખવાનું છે નહીં, અંદર આપેલું તેમાંથી જોઈને સમજીને લખવાનું. ચાલો રેડી. એ B13, let us find B13. બધા ટ્રાય કરો. B13, how we find? I put 1 and J3. So 1 plus 3 4, 4 minus 2 2, એટલે 3 square means 9. પટી ગયું? હવે A1 હતો ને J3 હતો. યાદ રાખજો, આપણે શું લીધું છે? I1 અને J3. તો અહીંયા હવે ઇન્ટુ AJI માં A31 લખાશે. બોલો, પકડાઈ ગઈ? રાય? સર હા, બધાને આ સમજ પડવી જ જોઈએ. ક્લિયર થયો? हाँ हाँ सर आ गया। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ो, जो है आगे जाने दे. अब क्या होता है? A21, A21 चाहिए हमको. तो फिर से वही नंबर में रखेंगे हम. તો A21 માટે પાછું પેલું લઈ આવો ભાઈ, સ્ટ્રક્ચર ઉપર નીચે નહીં કર્યા કર. નીચે લાવો જરાક. હા, પેલું તો દેખાવું છે બસ. હવે એમાં આપણે ગણતરી કરવાની છે. A21, તો I put 2, J put 1. તો 3 to the power 2 plus 1 minus 2. 2 to તો કટ થઈ જશે એટલે 3 જ આવશે. 3 નો 1 પાવર એટલે. અને A, રિમેમ્બર B21 છે એટલે I2 લીધો હતો, J1 હતો. તો હવે અહીંયા તમારે AJI લખવાનો છે એટલે A12 આવશે. B22 હવે આવે છે. B22 તો સવાલ જ નથી. I ને J બોથ સેમ, 2 2. તો પાવર ઓફ 3 વોટ? 2 plus 2 minus 2, 1 2 કટ થઈ જશે. 3 square 9. અને A22 જ આવશે. કારણ શું? કે J ને I બંને 2 છે, એમાં કોઈ તકલીફ નહીં પડશે. પણ જરા યાદ રાખજો, B23 હોતો તો ત્યાં 32 થઈ જશે, કેમ કે ઓલ્ટરનેટ છે. I જે છે તો ત્યાં JI છે. બરાબર સમજ્યા? ચાલો B23, let us find B23. તો 3 to the power 2 plus 3 minus 2, 2 કટ થઈ જશે. 3 નો ક્યુબ રહેશે. 3 નો ક્યુબ એટલે 27, and into A32. Now A31 we find. A31, third Romano, first element, A31. How we find A31? Put I3, J1. So 3 plus 1, 4 minus 2, 2. એટલે 3 square, so 9. And A alternate, there is B31, so here A13. Now A32 find. A32, I put 3, J put 2, means 3 plus 2 minus 2, 2 to cut, એટલે 3 cube, 27. And what we have into A23. Now B33. B33 means I put 3, J put 3. So 3 and 3, 6. 6 minus 2 means 4. 3 raised to 4. So 81 and A33.
So in this manner, I obtain all these elements value in terms of A. So look at for determinant B. I want determinant B. So what we have, determinant B is determinant of B11, B12, B13. Then B21, B22, B23. Then B31, B32, B33. But they obtain in terms of A. So we replace B11 by A11, then B12 by 3A21. આ કાંથી આવ્યું તો બધું સમજ પડે છે ને? B13 we put 9 times A31. Similarly, B21 we put 3 times A12. In this manner I substitute. Okay? Understand? All values we replace in terms of A11, A21. Clear થાય છે કે બધાને? Yes, Yes, sir. sir. હા ચાલો આગળ વધીએ તો ફરી પાછા જુઓ. અચ્છા ઉપર જવા દે. Now determinant B already given in your statement of question, that is 81. Yes, determinant B 81 given, so I put that value 81. And on right side I interchange row into column. Then there is no change in the value of determinant. You know the theorem of determinant. The first column, what we have A113, A12 and 9A13, I write in first row. Then second column I put in second row, third column in third row. You check yourself. Okay, now next what I do here, look at operation I apply. What operation I apply? From the second column you look, second column, yes, in second column 3 take out as common. हाँ, इसमें से 3 निकाल दिया और लास्ट कॉलम में से 9 कॉमन निकाल के बाहर रखा है मैंने, देख लो बराबर ध्यान से। हाँ, तो 3 into 9 आउटसाइड हो गया। अभी इनसाइड में डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम तो सेम होगी। अभी सेकंड कॉलम में से 3 कॉमन निकाला तो क्या होगा? सेकंड कॉलम को देखो बराबर, हाँ A12, फिर 3 कॉमन निकालने से 3A22 होगा एंड थर्ड में से भी 3 निकल गया तो 9A32। देखो सेकंड कॉलम, सिर्फ सेकंड कॉलम को कहाँ घुमाते हैं? हाँ, कर्सर को बराबर स्टेडी रखो। तो ये सेकंड कॉलम आ गया, मैंने 3 कॉमन निकाला तब। अभी थर्ड कॉलम पे पहुंचो तो थर्ड कॉलम में से मैंने 9 कॉमन निकाल दिया है, थर्ड कॉलम में से 9। तो बाहर 9 निकालने से क्या आएगा? आप देखो 9 आउटसाइड हो गया। अभी A13 होगा, फिर 9 3 जा 27 तो 3 टाइम A23 होगा, 9 9 जा 81 तो सिर्फ 933 होगा। हो गया बराबर? समझ में आ गया? अच्छा, अब सेकंड रो एंड थर्ड रो को देखो। सेकंड रो में हर एक में 3 कॉमन है एंड लास्ट रो यानी थर्ड कॉलम में भी 9 कॉमन है। तो फिर से 3 and 9 कॉमन निकाल दो बाहर, और एक 3 और एक 9 कॉमन आ गया तो बाची बचा क्या? डिटरमिनेंट ए ही बचा है ना। अभी देखो 9 9 81 दोनों साइड से कट कर दो तो उधर 1 हो जाएगा एंड इधर 3 3 जा 9 टाइम डिटरमिनेंट ए हुआ। सब कॉमन निकालने के बाद दोनों साइड से 81 कट होता है, वो तो देख सकोगे ना आप। फिर वहां 1 रहेगा, यहाँ 3 3 जा 9 एंड व्हाट डिटरमिनेंट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ए। अभी सोच में मत पड़ जाओ, अभी जो सोच में पड़ेगा तो क्या समझ में आया आप लोगों को? तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1/9 हो गई, वही अपना करेक्ट ऑप्शन दिया है बी। बोलो समझ में आया अभी? Yes, sir. चलो आगे बढ़े। 47 नंबर आ रहा है, पेज नंबर 42 पे। यस, ये रहा। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसा करके 3 इक्वेशन मैंने लिखा है, has more than 2 solution means infinitely many solution, उसका मतलब यही निकलता है। then mu minus the lambda square is equal to what? ऐसा क्वेश्चन दिया है, मैंने शायद ऑप्शन लिखा नहीं है, मैं भूल गया होगा ऑप्शन लिखने का, बराबर है। तो कोई बात नहीं। JEE मेन 7 जनवरी 2020 का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं कैसा क्या कैलकुलेशन करके आता है। सिस्टम हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन
It means what? Delta 0 and delta 1, delta 2, delta 3 also 0. You know it very well. आगे बढ़ो, आगे जाने दे. अब मैं टेकिंग डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब कि डेल्टा इक्वल टू 0 लेके आगे बढ़ता हूं तो लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी मुझको, शायद हो ही जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट जो है ना एक्स वाई जेड का, इसमें एक ही जगह पे लैम्बडा अननोन है, तो वो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बना दो, 1 1 1 1 2 3 3 2 लैम्बडा n is equal to 0. Because of lambda 0 we start, and then simplification gives lambda value 1, easy one, that you can verify yourself. So lambda you get 1. Now I interest with mu, so now I take lambda 1 equal to 0. Remember, lambda 1, lambda 2, lambda 3, all three always 0. So take lambda 1 0, means forget your line x and write down the coefficient. They are 1 1 6, 2 3 10, 2 lambda mu. There you know lambda value just obtain 1, that you can substitute. So now your determinant become 1 1 6, 2 3 10, 2 1 mu equal to 0. And when I simplify, I get mu value 14. And my question is to write value of mu minus lambda square. Mu minus lambda square. So 14 minus 1 square, that is 14 minus 1. So the answer is 13. हाँ देखो, मेरी बात अभी मेरे को ध्यान में आया. एक मिनट, यहाँ ऑप्शन क्यों नहीं लिखा गया है? तो लास्ट टाइम से क्या हुआ था, 25 टोटल सम आते थे. मेरी बात सुनो बराबर ध्यान से. 20 के पहले 19 तक 30 क्वेश्चंस आते थे. सब लोग सुनो ध्यान से, 30 क्वेश्चन आते थे. हाँ 30 क्वेश्चन आते थे. अब उन लोगों ने क्या चेंज किया है कि 20 सम में ऑप्शन देगा, और उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है 30 में से 25 कर दिया वो लोग. अभी 20 क्वेश्चंस का एमसीक्यू आएगा, और 21 23 2 23 24 एंड 25 का आपको आंसर ढूंढ के लिखना है. हाँ सर, वो सर ने बताया, मोहम्मद सर ने, टिक करना रहता है 1 पे, फिर 3 पे, ऐसा. अच्छा अच्छा, ऐसा आता है ना. तो ये पिछले साल से हुआ है, अभी ये चेंज हो गई पॉलिसी. तो मैं वही सोचने पड़ गया था कि कहाँ ऐसा आंसर, मैंने क्वेश्चन का जो बाद में सॉल्यूशन लाया, बाद में आंसर ऐसा करके लिखा, तभी मेरे को लाइट झपकी कि यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ आंसर ढूंढ के लिखना है. हाँ सर, आप ऐसे भूलते नहीं हो लिखना कभी. हाँ बस जो आएगा आंसर वो आपको बता के लिखना है, बराबर. अच्छा आगे बढ़े. अभी क्वेश्चन नंबर 48, इसके ऊपर जाने. हाँ 48 देखो, इसमें क्या क्वेश्चन दिया है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स फॉर म्यू लैम्बडा डेल्टा द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. बी केयरफुल, इनकंसिस्टेंट. मैंने पहला कंसिस्टेंट भूल से लिख दिया था, तो आंसर आने के बाद मैं सोच में पड़ गया, तो यहाँ तो 3 आंसर दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ. तो बाद में फिर से क्वेश्चन पढ़ा तो वहां इनकंसिस्टेंट लिखा था, तो इसीलिए मैंने इनकंसिस्टेंट बराबर ध्यान से देख लो लिखा है. तो आंसर एक ही आएगा, जो सेट नहीं होगा उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे. इसका सॉल्यूशन नहीं आने वाला है. इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? व्हेन वी कॉल सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड व्हेन वी कॉल सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट if it has solution. Either it is unique solution or infinitely many solution, whatever solution. But if solution possible, then we say system consistent. And if solution does not exist, we say a system is inconsistent. I hope you clear. Yes, sir. So what I write, for system to be inconsistent, you have to make your system inconsistent. It has either consistent माते लिखा है, not for inconsistent. The system to be consistent, it has either unique solution or infinitely many solutions. So you start taking delta value. Look at delta. When I calculate, I get 0. Delta means your coefficient of x, y, z, that you know very well. So delta I determine 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 4 determinant, and its simplification is 0. That you can check yourself.
तो इन दिस वे एज डेल्टा जीरो सिस्टम हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। यहां यूनिक सॉल्यूशन है ही नहीं, ऐसा तो समझ में आ गया। अगर डेल्टा नॉन जीरो होता तभी यूनिक सॉल्यूशन मिलते। तो यहां सिस्टम कंसिस्टेंट बनाना है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, और उसके लिए कंडीशन दूसरी क्या है, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों जीरो होना चाहिए। तब आगे बढ़ो और देखते हैं क्या आता है। अब हाँ, कौन सा पेज नंबर 43 पेज नंबर आता है, हाँ ये रहा। अभी देखो मैंने लिखा सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट के लिए तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैं कंसिस्टेंट पे डिस्कस कर रहा हूं, मैंने पहले चेक किया लैम्बडा की वैल्यू तो वो तो जीरो आ गई, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो उसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होना ही चाहिए। अगर वो हो तो डेल्टा वन जीरो, डेल्टा टू जीरो एंड डेल्टा थ्री तीनों जीरो होना चाहिए। तब देखते हैं डेल्टा वन जीरो लेके क्या मिलता है हमको। तो वो एक्स वाला जो इक्वेशन में है ना लाइन, उसको ढक देंगे और बाकी का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो 2 3 1 4 5 म्यू एंड 4 4 डेल्टा, ऐसा डिटर्मिनेंट आता है इक्वल टू जीरो। ये जीरो होना ही चाहिए। तो ऐसे जीरो लेके मैंने एक इक्वेशन निकाल दिया। कौन सा, नंबर वन देखो, 2 म्यू माइनस डेल्टा इक्वल टू 2 आया। चेक करो बराबर अपने हिसाब से, इसमें कोई कैलकुलेशन तकलीफ वाला है ही नहीं, डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है आप सबको। तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बोल देता हूं टाइम बिगाड़ने के बजाय। हो गया, ये फर्स्ट नंबर आ गया, चेक करते रहना। अभी डेल्टा टू जीरो लेके मैं आगे बढ़ू। डेल्टा टू का मतलब वाई वाली लाइन को फॉरगेट करके बाकी का कोएफिशिएंट लिखना है। तो वो 1 3 1 3 5 म्यू 4 4 डेल्टा इक्वल टू जीरो ऐसा करके लिखा। तो उसमें भी वही इक्वेशन आया, देखो 2 म्यू माइनस डेल्टा बराबर 2 आया। तो कोई फायदा नहीं, ये दो इक्वेशन सॉल्व करने से लैम्बडा म्यू तो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू आएगी, हमको तो यूनिक वैल्यू चाहिए। आगे बढ़े, टेकिंग डेल्टा थ्री, और एक चांस है ना अपने पास, डेल्टा थ्री बराबर जीरो, वो भी होना चाहिए। तो उसमें से क्या आया देखो, 2 म्यू माइनस डेल्टा बराबर जीरो, मीन्स के तीनों में से एक ही आया। फॉर 2 म्यू माइनस डेल्टा बराबर टू, तो तीनों तीनों इक्वेशन में एक ही आया। अगर ये इक्वल टू टू हो जाए, ऐसी जो म्यू की डेल्टा वैल्यू होए, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करे, वैसी सॉल्यूशन निकाल दो अपना फोर ऑप्शन में से, तो वो ऑप्शन सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बनाएगी। तो अभी देखना है चार ऑप्शन। देखो एक पहला ऑप्शन 3 4 है, अगर आप 3 4 रखो उसमें, 3 4 का मतलब म्यू की वैल्यू 3 एंड डेल्टा की वैल्यू 4 लिखो, अंदर कैलकुलेट करो, 2 3 6 6 माइनस 4 2, तो वो तो सेटिस्फाई कर दिया। मतलब के 3 4 के आगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा ही, तो सिस्टम कंसिस्टेंट बोला जाएगी 3 4 के आगे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 6, इसको भी लिख के चेक करो। म्यू की जगह 4 लिखो तो 4 2 8 होगा, -6 तो वो भी 2 आया, मतलब कि 4 6 ने भी सेटिस्फाई किया। इसका मतलब ये कि 4 6 के आगे भी क्या होगा, इनफाइनाइटली। एंड इसके बाद 4 3 तीसरा ऑप्शन है, तो म्यू की जगह 4 लिखो, वहां डेल्टा की जगह 3 लिखो, तो क्या आता है, 4 2 8 -3। 8 - 3 का मतलब 2 नहीं होता है, 5 होता है, यानी कि इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कोई जीरो होने वाला नहीं है, तो मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, यानी कि सॉल्यूशन यूनिक तो है ही नहीं, अभी इनफाइनाइटली मैनी भी नहीं है, तो सॉल्यूशन सेट ही नहीं हुआ, 5 हुआ, यानी कि एम्प्टी सॉल्यूशन आया। या इसका मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट हुआ यहाँ पे 4 3 के आगे। अगर इसके बाद चौथा ऑप्शन भी है 1 0, 1 0 लिखोगे तो म्यू की जगह 1, डेल्टा की जगह 0 लिख दो तो 2 आ गया, मतलब से सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई करने के लिए मीन्स के 1 0 लिखने के बाद सेटिस्फाई हुआ ये 2 म्यू माइनस डेल्टा बराबर 2, इसका मतलब डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो होता है, तो मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो अगर आप बराबर ध्यान से सुनो, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये तीनों के आगे
क्या होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट होती है। सिर्फ ये सी ऑप्शन जो है 4 3, वहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीरो नहीं होता है, इसीलिए सॉल्यूशन सेट 5 आता है। एंड देयरफॉर वी कॉल इनकंसिस्टेंट व्हेन म्यू इज 4 एंड डेल्टा इज 3। बोलो, आपने समझ में आया मैं जो कुछ बोल गया वो? Yes, sir. यस तो सर। हाँ, ऐसा सम होता है। तो अगर वहां इन को खसेड़ के कंसिस्टेंट बना दो तो 3 ऑप्शन आपका आएगा। इनकंसिस्टेंट लिखा है, इसीलिए सी ऑप्शन एक ही इसकी फेवर करता है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीरो नहीं होने वाला है, और इसीलिए वहां सॉल्यूशन नल सेट आएगा। एंड जब सॉल्यूशन नहीं होगा तब हम सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। आई होप यू क्लियर। Yes, sir. Okay, I proceed now in next sum number 49. The number of all 3 by 3 matrices A with entries from -1 0 1 such that the sum of the diagonal elements of A into A transpose is 3 is what? देखो कैसा क्वेश्चन लिख दिया उसने। उसने क्वेश्चन ऐसा लिखा कि नंबर ऑफ ऑल 3 by 3 मैट्रिसेस कितनी होगी ए मैट्रिक्स, जिसकी एंट्रीज ये तीनों नंबर में से होगा -1 0 1, सच दैट द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज इज 3। ये क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो जो उसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने लिखा लेट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B3 C3, ऐसा एज्यूम करना पड़ा क्योंकि दिया ही नहीं है तो। और उसके बाद ए ट्रांसपोज घुमा दिया, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख के ए ट्रांसपोज कर दिया। अब मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया। मेरे को मुझको इंटरेस्ट है सिर्फ कौन से साथ, किसके साथ, डायगोनल एलिमेंट के साथ, तो मैंने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट वाला ही लिखा है, बाकी सब की जरूरत नहीं है तो नहीं बताया। समझ में आया? ये अननोन टर्म्स है तो बहुत ऑकवर्ड आएगा, क्यों बताए? हमको चाहिए A1 B1 C1, बराबर। फिर मैंने A1 Yes, B1 sir. C1 के साथ प्रोडक्ट किया तो A1 स्क्वायर B प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर आएगा। वैसे ही सेकंड रो को वहां से लो ए में से, और ए ट्रांसपोज में से सेकंड कॉलम करो, तो उसको प्रोडक्ट करेगा तो वो डायगोनल का सेकंड एलिमेंट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आएगा। और ऐसी तरह तीसरा रो जो है पहली मैट्रिक्स में A3 B3 C3, उसको प्रोडक्ट करो तीसरा कॉलम में ए ट्रांसपोज में, तो वो A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर आएगा। ये डायगोनल का सम जो है एलिमेंट का वो 3 दिया गया है। अब पढ़ो, मैंने लिखा है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज 3। तो सबका मैंने मिला दिया। देखो ऊपर जाने दे भाई, क्वेश्चन को पेज को ऊपर जाने दे। राइट, थम गया, हाँ बस बस बस। देखो तो क्या हुआ, तीनों टीन का एडिंग करने से उसका सम 3 आया। अब वो सम 3 क्या कैसा आएगा, ये तो सब स्क्वायर है, सब स्क्वायर है, देख लो पहले। स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसका मतलब ये कि हर एक ब्रैकेट की वैल्यू 1 1 1 आएगी तो 3 होगा ना। बोलो समझो पहले। मान लो कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर 1 आया, दूसरा भी 1 आया, तीसरा भी 1 आया, तो 3 होगा ना। इसका मतलब 3 एंट्रीज એટલે A1 B1 C1 या तो A2 B2 C2 A3 B3 C आइदर 1 होगी या -1, क्योंकि स्क्वायर है तो -1 का भी स्क्वायर क्या होगा, +1। तो अब हमको चाहिए नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो जो टोटल 9 एलिमेंट्स है किसके अंदर, अपनी मैट्रिक्स में, 9 में से कोई भी 3 एलिमेंट्स आपको चूज करना पड़ेगा। 3 एलिमेंट्स, 9 एंट्रीज में से 3 एंट्रीज आपको लेना है। तो कितनी तरीके से ले सकोगे, 9 C3, और ये 3 एंट्री दो
दो टाइम से आइदर 1 आएगा या तो -1, तब ये सेटिस्फाई होता है। तो मतलब ये कि ये तीनों की तीनों एंट्री 2 टाइम्स आप सेट कर सकते हैं, 1 या तो -1, दूसरी भी 1 या तो -1, तीसरी भी 1 या तो -1। इसका मतलब 9c3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब, या तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं। और उसका कैलकुलेशन आपको तो पता है, एनसीआर की वैल्यू फॉर्मूला, उसके मुताबिक मैंने सिंप्लीफाई किया तो 672 आता है। ये आंसर देना है इसमें। देखो मैंने ऊपर जाने दे, इसके अंदर क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर लिखना है, तो वो 672 वाला आंसर था। हाँ ये आंसर। अभी हम जाते हैं 50 नंबर में। अभी हमके पास 5 क्वेश्चन बचा है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, है बाद में बैठते हैं। आप जरा इस सम को पढ़ो। हाँ अब 50 सम नंबर देखते हैं हम। इसमें भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस दिया है। हैज infinitely many solution when lambda 2, or no solution when lambda 2, no solution when lambda 8, या तो in unique solution when lambda equal to -8। ये क्वेश्चन है 8 जनवरी 2020 में, सेकंड शिफ्ट में। तो देखें हम लैम्बडा की वैल्यू निकालें। लैम्बडा का मतलब सॉरी डेल्टा की वैल्यू, यानी कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स। तो वो देखो इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लैम्बडा 2 2, देन 2 लैम्बडा 3 5, 4 लैम्बडा 6, एंड इसका सिंप्लीफिकेशन देखो कैसा आता है। लैम्बडा इंटू, जरा पढ़ के देखो, 6 3 18 -5 लैम्बडा, फिर -2 इंटू करके 6 2 12 लैम्बडा -20, फिर +2 इंटू करके 2 लैम्बडा स्क्वायर -12। और सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू देखो, -5 लैम्बडा स्क्वायर पहला ब्रैकेट में आएगा और लास्ट ब्रैकेट में 4 लैम्बडा स्क्वायर है, तो दोनों को मिला दो तो -1 लैम्बडा स्क्वायर हुआ। फिर लैम्बडा को ढूंढे। देखो पहले ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में नजर करो, 18 लैम्बडा है, दूसरा ब्रैकेट में -24 लैम्बडा है। तो 18 लैम्बडा -24 लैम्बडा का मतलब -6 लैम्बडा। अब कांस्टेंट को ढूंढो। कांस्टेंट वाली टर्म क्या है, दूसरा ब्रैकेट में है, तो माइनस माइनस +40 है, एंड लास्ट ब्रैकेट में -24 है, यानी 16। अब मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया बाहर, तो लैम्बडा स्क्वायर +6 लैम्बडा -16 हुआ। उसका 2 फैक्टर निकलता है, माइनस ब्रैकेट करके लैम्बडा +8 लैम्बडा -2,
आप सोच लो बराबर ध्यान से, अब ऊपर जाने दे। तो दो फैक्टर आया लैम्बडा बस थी ना यहाँ तक, हाँ लैम्बडा +8 एंड लैम्बडा -2। अब मैंने क्या लिखा देखो, स्टेटमेंट लिखने की बहुत जरूरत है। इफ लैम्बडा बराबर 0 हो तो लैम्बडा कौन सी वैल्यू आएगी, -8 और 2। अगर मान लो कि लैम्बडा 0 है तो ये दो वैल्यू आएगी। तो देन नो सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन फॉर लैम्बडा इक्वल टू -8 और 2। यू नो लैम्बडा इफ 0 देन देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं बोल सकता हूं अगर लैम्बडा की कीमत -8 और 2 हो तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा उसका क्वेश्चन आया। बराबर है, समझे आप सब? हेलो, Yes. हाँ ये समझ लो बराबर ध्यान से कि लैम्बडा की वैल्यू तो मैंने निकाल दी। अब क्या करना है मुझको, मुझको क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्बडा 2, नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्बडा 8, a unique solution when lambda minus infinitely many solution for lambda equal to 2। ये चार में से ऑप्शन निकालना है। तो मैं कैसे सोचूंगा कि जो ये लैम्बडा वैल्यू जो मैंने निकाली, तो अगर वो 0 ले ली जाए तो क्या लैम्बडा की वैल्यू होगी। तो पता चल जाता है कि अगर -8 और 2 हो लैम्बडा की वैल्यू तो लैम्बडा श्योरली 0 होगा। एंड अगर लैम्बडा 0 होगा तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो ये कंक्लूजन जो मैंने लिखा, नो यूनिक सॉल्यूशन फॉर लैम्बडा इक्वल टू -8 और 2, वो सब समझ में आया ना आपको? अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू इसकी फेवर करती है वो भी ढूंढना पड़ेगा। देखो मैंने स्टार्ट किया, अगर हम लैम्बडा 2 लेते हैं तो देन लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या होती है। देखिए लैम्बडा 1 की वैल्यू का मतलब एक्स लाइन ढक दो और बाद में कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बना दो। तो वो हुआ 225 351 सॉरी 358 एंड लैम्बडा 610। तो लैम्बडा की जगह 2 लिख दिया मैंने। अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो नॉट 0 आता है। Therefore, for lambda equal to 2, lambda 0 and lambda 1 not 0. So we conclude that there is no solution. आप जानते हैं लैम्बडा 0 आए और लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 तीनों में से एटलीस्ट वन, लैम्बडा 1 या लैम्बडा 2 या लैम्बडा 3 नॉन जीरो हो तो वी हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि लैम्बडा 0 आया तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। एंड लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 तीनों और भी 0 आ जाता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। यहाँ मैंने ऐसा ही सोचा कि लैम्बडा 0 है तो कब 0 होता है, -8 और 2 के आगे 0 होता है, ये तो पता चल गया। तो इसका मतलब कि -2 और 2 के आगे इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं क्या सोचने जा रहा हूं कि अगर मैं लैम्बडा की दोनों में से एक आध वैल्यू लूं 2 और डेल्टा 1 की वैल्यू चेक करूं तो क्या होता है, मेरे सामने आ जाता है वैल्यू 16, मतलब कि नॉट 0 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्बडा 2 के आगे लैम्बडा 0 होता है लेकिन लैम्बडा 1 तो नॉन 0 हुआ। तो लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 का चेकिंग करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम यहाँ पे निर्णय ले सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि लैम्बडा बराबर 2 के आगे सॉल्यूशन है ही नहीं, और इसीलिए अपना करेक्ट ऑप्शन बी आ जाता है। जब -8 का तो चेक करने का सवाल नहीं रहता है क्योंकि नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्बडा 8 ऐसा भी लिखा है उसने। तो यहाँ 8 थोड़ा आया है, -8 आया, -8 के आगे तो उसने बोला है यूनिक सॉल्यूशन। वैसे यूनिक सॉल्यूशन आता ही नहीं है -8 के आगे, तो इसीलिए -8 को मैंने नहीं चेक किया। पता चला सबको? ये बुद्धि का काम है, ऐसा घबरा मत जाने का। क्यों किसको चेक करना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। डेटा को बराबर पढ़ो और उसी के उस मुताबिक आंसर देना पड़ेगा। तो हो गया बराबर, समझ में आया? लैम्बडा 2 के अगर सॉल्यूशन नहीं है। अब चले Yes, 50, sir. हाँ अब चले 51 की ओर। देखिए 51 में क्या है। Three matrix is given. Yes, if a 2 by 2 matrix, very simple, 2 2 9 4, and I identity matrix 1 0 0 1 given, then 10 A inverse is equal to what? बोलो, इसमें से ढूंढना पड़ेगा आपको 10 A inverse।
तो कैसे हम लाएंगे? देखो 10 ए इनवर्स का मतलब 10 तो एज इट इज, ए इनवर्स का मतलब फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हम लिखते जाए आगे, ऊपर जाने दे राय, ऊपर जाने दे पेज, हाँ बस। 10 इंटू डिटर्मिनेंट ए, अगर आपने देखा हो मैट्रिक्स तो 2294 है, उसका डिटर्मिनेंट कन्वर्ट करो तो 2 4 जा 8 एंड 9 4 जा 9 2 जा 18, ऐसा हो सकता है अगर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो। यहाँ डिटर्मिनेंट की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट की जरूरत है। तो देखो मैंने -10 डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी लिख दी, क्योंकि 8 - 18 होगा ना वो, तो -10 ही होगा। और उसके बाद मैंने एडजॉइंट ए लिखा है, तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स आर इंटरचेंज, 2 4 नाउ राइट 4 2, एंड इन सेकेंडरी डायगोनल्स एलिमेंट ऑपोजिट, तो 2 9 था तो वहां -2 -9 हो गया। तो देखो 10 10 तो कट हो गया, तो होगा क्या? राइट साइड पे जो 10 ए इनवर्स लेफ्ट साइड है, तो 10 ए इनवर्स बराबर माइनस साइन को अंदर ले लो, सिर्फ वो मैट्रिक्स ही बचा है, माइनस साइन को अंदर ले लो, तो -4 2 9 - 2, ऐसा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखो बुद्धि से चेक कर सकते हैं, एक की तो वैल्यू पता ही है आपको 2294। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सूट होगा तो तुरंत पता चल जाता है। कैसे? कि 2294 है और दूसरे में -6006 होगा, 6i का मतलब, तो 2 - 6 का मतलब -4, 2 - 0 का मतलब 2, 9 - 0 9, एंड 4 - 6 -2। तो यही मैट्रिक्स आई। ये थोड़ी कसरत करने के बाद आपको दिखाई देगी। 10 ए इनवर्स बराबर ए -6i। तो ये दिमागी कसरत है, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन को चेक किया है। हर एक को चेक करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आइडिया आ जाती है। मैट्रिक्स ए को देखो, और 6i तो आपको पता ही है, तो इसमें से वो कट करेगा तो यही स्ट्रक्चर आएगा जो हम लोगों ने 10 ए इनवर्स ढूंढा है वो। तो इसीलिए ये दोनों इक्वल है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। आप 52 देख लो, 52 तो बहुत सिंपल दिया है। इफ द मैट्रिसेस ए 3 by 3 1 1 2 1 3 4 1 -1 3 and matrix B equal to adjoint A, and also C matrix is 3 times A, then question is what determinant of adjoint B by determinant of C is equal to what, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो पहले डिटर्मिनेंट ए की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने डिटर्मिनेंट ए को निकाल दिया कैलकुलेशन करके, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, फिर कैलकुलेट किया तो 6 वैल्यू उसकी आई। बराबर ध्यान से देख लो, डिटर्मिनेंट ए 6 वैल्यू आई, सब चेक करो। 1 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस 4 ऐड करो तो 13, फिर -1 इंटू 3 -4 तो -1 होगा, एंड 2 इंटू -1 -3 तो -4। अब देखो 13 + 1 14 एंड -8 तो हो गया ना 6। चलो अब डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी, बस यहां रुको, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी बाय मॉड सी। देखो वहां डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी, बी की जगह दिया है एडजॉइंट ए, तो मैंने क्या लिखा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा जाएगा क्या? नहीं। एंड डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी है, सी तो दिया है 3a, तो वहां मैंने लिखा मैट्रिक्स 3a, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3a। अब आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स 3 by 3 की हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए वो मैट्रिक्स का स्क्वायर आता है, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का स्क्वायर आता है। फॉर्मूला याद है क्या? नहीं भाई बोलिए जरा, कोई तो बोलो, सब म्यूट करके बैठ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चालू रखो। हाँ सर। हाँ तो मैं पूछता हूँ तो जवाब भी आना चाहिए,
कि अगर मैट्रिक्स ए 3/3 में हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर लिखते हैं हम। यहाँ एडजॉइंट निकालोगे तो वो भी 3/3 की ही आने वाली है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए वो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का स्क्वायर होगा। फिर आ गई बात क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वो तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर हुआ डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू 4। अब डिनोमिनेटर की बारी कर, तो वो डिटर्मिनेंट सी था, वो डिटर्मिनेंट 3a आया। अभी डिटर्मिनेंट 3a का मतलब क्या है कि 3a 3 इंटू मैट्रिक्स ए, तो 3 हर एक में प्रोडक्ट किया जाएगी हर एक एलिमेंट के साथ, और अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हर एक रो में से 3 कॉमन निकालेंगे, तो इसीलिए वो 3 3 3 3 टाइम आएगा, तो 27 डिटर्मिनेंट ए होगा। ऊपर डिटर्मिनेंट ए 4 है, नीचे 27 डिटर्मिनेंट ए, 1 कट हो गया, तो डिटर्मिनेंट ए क्यूब बाई 27, और उसने डेटा में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाली है 6। देखो पहली लाइन में, तो वो 6 लिख दिया, 6 इंटू 6 इंटू 6 करके, और डिवाइड बाई 27, तो तीनों 6 में से 3 निकाल दो, 3 3 3 कट हो जाएगा, 2 2 2 रहेगा, तो मतलब 8 आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, एंड इसीलिए करेक्ट ऑप्शन बी बोला जाएगा। सभी सब में कुछ न कुछ नया नई आइडिया लेके ही आते हैं भाई। देखो अब 53rd सम आ रहा है, इफ फॉर सम अल्फा बीटा इन आर द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 3 प्लेन्स, देखो ये प्लेन्स आया, इज अ लाइन इन R3 देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे ना तब प्लेन्स और क्या बोलते हैं लाइंस इन R3 स्पेस सब कुछ जान जोगे, तो इसीलिए वो कंबाइन सम करके पूछ लिया है इसने। देखो प्लेन का इक्वेशन भी जैसे हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं ना एक्स वाई जेड में, वैसा ही आता है। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो वैसा ही ये 3 इक्वेशन दिया है, जैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते थे वही, है ना, तो इसको हम प्लेन बोलेंगे। प्लेन शब्द नया है, बाकी तो ये 3 लीनियर इक्वेशन ही है। अब देखो पढ़ो फिर से, if for some alpha beta in R the intersection of these 3 plane, when you see the intersection of plane then you get line, remember line, always line, when 2 line intersect then you know point is the point of intersection, and when 2 plane intersect then the intersection of 2 plane must be a line. So here 3 plane intersect is a line, then what alpha plus beta is equal to. Look how I solve this. ऊपर जाने दो, JEE मेन 9 जनवरी में पूछा गया है, जरा ऊपर जाने दे भाई। अच्छा देखो, प्लेन इंटरसेक्ट इन अ लाइन, दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन के ऊपर तो बहुत से पॉइंट होता है, तो अब सभी पॉइंट ये तीनों इक्वेशन का सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यही हुआ कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया गया है उसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो उसमें डेल्टा 0 होता है न, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 होता है, तो हमने डेल्टा 0 लेके अल्फा की वैल्यू निकाल दी है। देखो जरा आगे जाने दे, ऊपर जाने दे। हाँ, डेल्टा बराबर 0 लिया तो क्या हुआ, डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट लेते थे ना वैसा ही लिखने का है, 1 4 माइनस 2 1 7 माइनस 5 1 5 अल्फा, और इसका 0 इक्वल टू 0, ऐसा करके सिंप्लीफाई करके अल्फा की वैल्यू -3 आई। ऑल्सो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इक्वल टू 0, ऊपर जाने दे, तो देयरफॉर व्हाट इज फ्रॉम डेल्टा 1 इक्वल टू 0। देखें डेल्टा 1 का मतलब एक्स वाली लाइन ढक के बाकी के सब कोएफिशिएंट लिखना है, वो आपको पता होना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। 4 माइनस 2 1, फिर 7 माइनस 5 बीटा एंड 5 अल्फा 5, अल्फा की जगह -3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब उसका सिंप्लीफिकेशन में से मुझको बीटा मिल गया, बीटा की वैल्यू क्या है 13, हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा का आंसर, तो अल्फा की -3 बीटा की +13, तो हो गया आंसर। दें बस यही आंसर है ऑप्शन सी। देखो
कितना चेंज करके पूछा, लेकिन वो तो है तो अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे ही डिपेंड। चलो तो आगे बढ़े 54 नंबर। अब आ रहा है सेकंड लास्ट। 54 नंबर में क्या है, कंडीशन दी है a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 1 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू करके डिटर्मिनेंट दिया है, देन एफ ऑफ माइनस 50 या एफ ऑफ 50 सब वैल्यू दी है, कौन सी वैल्यू करेक्ट है वो ढूंढ के बताना है हमको। बराबर है। चलो तो अब आपको क्या ध्यान में लाना है कि वो कंडीशन a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 1 दिया है, तो मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन जो अपना दिया गया है इसमें से a प्लस सी माइनस 2b का सेटिंग करता हूं मैं। और इसीलिए मैंने क्या किया, पहले देखो, पहले मैंने मेरे हिसाब से R1 में R3 रो ऐड कर दी। R1 में R3 रो ऐड करने से क्या होगा, अपना जो क्वेश्चन में दिया गया है वो डिटर्मिनेंट देखना, पहले वहां R3 को लो और फर्स्ट रो में ऐड करो, तो 2x प्लस ए प्लस सी आएगा, चेक कर लो। फिर क्या होता है, x प्लस 4 एक्स प्लस 2 में ऐड करेंगे तो 2x प्लस 6 आया। फिर वहां देखते जाओ और यहां ऐड करके देखो, x प्लस 1 में मैंने x प्लस 3 ऐड किया था, 2x प्लस 4 हो गया। मतलब कि फर्स्ट रो में थर्ड रो ऐड करनी है, ऐसा ऑपरेशन किया है, बाकी सब ऐसा का वैसा ही रखा है। हो गया, सबका ध्यान में आ गया बराबर? यस नो बोलो भाई। हाँ, अब मैं दूसरा ऑपरेशन करने जा रहा हूं, वो बहुत ध्यान से देखना। अब मैंने लिखा ही है, उसको देख लो। R1 में से R2 को -2 मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो सेकंड रो जो है, सेकंड रो उसको -2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करो। तो देखो ये हाँ यहाँ पे, यहाँ ऐड मल्टीप्लाई करना और यहाँ चेक करना, ये जो आप कर्सर बता रहे हैं वहां चेक करना। और ये पहला वाला डिटर्मिनेंट को देखो, हाँ उसका सेकंड रो को लो, बराबर है। सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करो, तो -2x -2b ऐड होगा, 2x कट हो जाएगा, आएगा ना a प्लस सी माइनस 2b। ये दूसरी डिटर्मिनेंट में है सामने, कर्सर को घुमा के यहां बताओ, हाँ ये आ गया, आया ना। अब देखो दूसरा, वो दूसरा एलिमेंट देखो, वहां पहला डिटर्मिनेंट में x प्लस 3, उसको -2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करोगे तो वो तो डायरेक्ट कट हो जाता है, जीरो आएगा, डबल ही तो है। फिर तीसरा एलिमेंट को भी -2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करो तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये आया आपका डिटर्मिनेंट। अब उसका ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो कॉमन क्या निकाला है मैंने, देखता हूं। हाँ, a प्लस सी माइनस 2b की वैल्यू उसने 1 दी है ना डेटा में, वो रख दिया मैंने, ये डेटा में दिया है, हाँ ये पहली लाइन बस, तो वहां रख दिया 1। तो 1 0 0 x प्लस बी एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, ऐसा ही सिंप्लीफाई हो गया। अब मैंने एक और ऑपरेशन किया, थर्ड रो को सेकंड रो में से कट किया, देखो बराबर ध्यान से। અને ऑब्वियसली मैंने वही भी ऑपरेशन किया है कि R2 माइनस R3 ऐसा लिखा है। सेकंड रो देखो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, कॉलम नहीं देखने का। हाँ, तो मैंने क्या कट किया है, थर्ड रो सेकंड रो में से, तो x कट हो गया, b माइनस सी हुआ, फिर x कट हुआ एंड 3 माइनस 4 का मतलब -1 हुआ, इसके बाद फिर से x कट हुआ, 2 माइनस 3 का मतलब -1, बस। अब इसका प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई कर दो, तो आसान तरीका हो गया। देखो 1 इंटू -x माइनस 3 होगा, -1 के साथ प्रोडक्ट, एंड यहाँ प्लस होगा, प्लस x प्लस 4, तो x कट हो गया, 4 माइनस 3 1, तो fx की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 1 आ गई, तो हेंस fx एज कांस्टेंट वैल्यू 1। तो व्हाट अबाउट F50, 1 ही आएगा ने। F50 का जो उसमें जो 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन देखो, अभी ऑप्शन, क्वेश्चन ला दो, हाँ क्वेश्चन, हाँ इसमें देखो F माइनस 50 तो 1 ही होना चाहिए, तो -1 लिखा है तो वो गलत है। F50 बराबर 1 करेक्ट है, क्योंकि fx 1 आया तो कोई भी x लिख लोगे तो 1 ही होना चाहिए।
और सी एंड डी दोनों रॉन्ग है, देख लिया बराबर। तो इसीलिए बी, हाँ इसीलिए बी ऑप्शन को करेक्ट बोलेंगे हम। एंड अब हम आप पहुंचे लास्ट सम पे 55। एक्चुअली 56 सम है, मैंने एक नंबर रिपीट कर दिया है 43 भूल से, तो ये 55 नहीं होगा, लेकिन लास्ट नंबर 56 हो रहा है। कोई बात नहीं, जितना भी नंबर हो। अभी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीनों इक्वेशन है, हैज नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, satisfying y equal to 2x, only the trivial solution, and infinitely many solution satisfying x equal to 2z। इसमें से क्या होगा? तो मैंने डेल्टा चेक करके देख लिया। देखो डेल्टा तो आसान से चेक हो जाएगा, तीनों इक्वेशन में से कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड का निकाल के डिटर्मिनेंट बना दिया, आप जानते हैं, उसकी वैल्यू 0 आ गई। तो उसका मतलब यही हुआ कि डेल्टा 0 आने से यूनिक सॉल्यूशन तो है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। उसका मतलब ये हुआ। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरे को एक्स एंड जेड का रिलेशन चाहिए या वाई का एक्स का रिलेशन चाहिए, उसका क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसके मुताबिक। तो मैंने टू इलिमिनेट वाई, मैंने वाई को इलिमिनेट किया। वी ऑपरेट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 प्लस 3। ऐसा क्यों किया वो आप देख सकते हैं, जरा अंदर इक्वेशन पे नजर करो, 1 2 3। y को इलिमिनेट करना है। देखो पहले में 6y है, दूसरे में 4y है, तीसरे में -2y है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में से अगर मैं इक्वेशन 2 कट करूं तो 6y में से 4y कट होने से 2y होगा, और बाद में थर्ड इक्वेशन ऐड कर दूं तो 2y कट हो जाएगा। बस यही काम किया है। ऐसा सोच के मैंने पहला इक्वेशन वाला लेफ्ट साइड लिख दिया। देखो यहाँ वी गेट करके मैंने लिखा है वहां। तो पहला इक्वेशन का लेफ्ट साइड वाला पार्ट लिखा, प्लस आई मीन के सेकंड इक्वेशन में माइनस करना है, तो सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड वाला पार्ट -3x + 4y + 2z लिखा। एंड थर्ड इक्वेशन में तो हमको 3 आई मीन डायरेक्ट लेफ्ट वाला पार्ट ऐड करना है बस। तो उसका इक्वल टू तो 0 ही आएगा, राइट साइड पे तो ऑल 0 है। तो सिंप्लीफिकेशन करने से मुझको 5x - 10z बराबर 0 मिला, यानी कि x बराबर 2z। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग x इक्वल टू 2z, ऐसा रिलेशन हो गया। तो ये ऑप्शन डी में ही दिया गया है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं आपके लिए, मैंने एक्स्ट्रा सम लिस्ट बना के लिखा है 20 सम, और सभी का आंसर भी मैंने सॉल्यूशन लिखा है। अभी नहीं आएगा, इसमें नहीं दिया है, आज मैं भेजूंगा आप लोगों के लिए, समझे? हाँ, तो एक्स्ट्रा सम्स ऑन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट फॉर प्रैक्टिस, और ये सभी कोई न कोई साल में पूछा ही गया है, लेकिन वो पहले साल में, मतलब के 2012 2011 AIT। हाँ हाँ, सभी क्वेश्चन कोई न कोई मतलब के AIEEE IIT या JEE सभी में कहीं न कहीं तो पूछा ही गया है। तो वो हाँ, और इजी भी है थोड़ा सा। कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अब अभी मैं क्या बोलूं कि बहुत से सम किए हमने, यहाँ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को टोटल मिला लो तो 56 सम हुआ है। 56 क्वेश्चन जो पूछा गया था वही मैंने बताया है, बाहर का तो लिया ही नहीं है। कहीं न कहीं साल में आपने साल के साथ मैंने जोड़ के बताया है कि कौन से फिर भी साल में। अगर इतना कर लेंगे तो मतलब इनफ रहेगा। हाँ, वही मैं कहने जा रहा हूँ, इतना भी करोगे तो इनफ रहेगा, सही बात है। क्योंकि इसमें से आइडिया ही आ जाती है क्या क्या करना है। जैसे आपने देखा लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हर सोल्यूशन हर साल में आता ही रहता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो मैंने प्रैक्टिस सम आज मैं लिस्ट भेजूंगा उसको भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। हाँ सर, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर उसमें हाँ डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकोगे तो मैं आंसर दूंगा, बराबर है। हाँ हाँ सर, अभी मेन बात करें, मैंने 2 चैप्टर की बात की। जैसे हमने फिनिश किया था, पहला चैप्टर था वो रिलेशन एंड फंक्शन वाला, बराबर है। अभी ये चैप्टर, हाँ ये चैप्टर हो गया।
अब जो नेक्स्ट टाइम जो होगा ये चैप्टर मतलब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टोटल मिला के तीनों चैप्टर की बात हो गई। अब अपना जो चैप्टर चल रहा है वो इंटीग्रल्स वाला, इसमें मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल पार्ट कंप्लीट किया है। डेफिनेट इंटीग्रल्स नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करेंगे। परसों तो से, ओके। हाँ नेक्स्ट टाइम यहाँ JEE का कोई वर्क नहीं होगा। हाँ समझ में आ गया इन सबको? हाँ, तो yes. हाँ सबको इन्फॉर्म कर देना। आज मेरे ख्याल से पंकज एब्सेंट दिख रहा है। हाँ, राज पंकज चला गया। राज आया है ना? राज तो आया ही है मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, परसों मेरा अपना टर्न आएगा ना तो वहाँ हम वो इंटीग्रल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके Fine. ओके ओके, बाय, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।